Hello to all my TYBSc microbiology students. Phenomena like precipitation, agglutination are going to take place when the antigen and antibody comes in contact with each other in a suitable conditions. Okay, we have learned about them, and also we have studied some of the major applications of the reaction of antigen antibody. Our chapter name is antigen antibody interaction. We are going to see how this phenomenons of the interaction can be used in the day-to-day application for the diagnosis. Okay, we have also seen that precipitation reaction can be used for the diagnosis purpose. Maybe it can be used in the form of the immunoelectrophoresis, it can be used in the form of the ring test, it can be used in the form of the radial immunodiffusion, double immunodiffusion, any type of technique can be used. Okay, here we are going to see the second phenomenon, which is agglutination. We have already learned about the agglutination in the offline sessions. Okay, here we are going to see that agglutination can also be employed for the diagnosis purpose like precipitation. Okay, in the precipitation also we have seen that the precipitation phenomenon or the lattice formation phenomenon can be used in the diagnosis purposes. Okay, so here also we are going to see how the agglutination can be also used for the diagnosis purposes. So if you remember, we have seen about the agglutination takes place in the two stages or two phases. Okay, the first phase was the sensitization and the second stage was the actual lattice formation. Okay, and whenever this antigen and antibody come in contact with each other, if the antigen is having the multiple antigenic determinants and the antibody is having the multiple binding sites. Okay, it is multi it may be the agglutination. Okay, so the agglutination thing is that the difference of it from the precipitation is that it involves the antigen which is of insoluble form or it is of the particulate form. Okay, it is somewhat larger as compared to the soluble form. Okay, if the antigen is soluble, then it will lead to the precipitation reaction, while the antigen if is in the non-soluble form, if it is in a particulate form, then it will lead to the formation of the clumping. It is known as the agglutination. Okay, we have already learned about the agglutination reaction in our offline lectures. Okay, so let's just revise those things. So agglutination means what? It means that the when a particulate antigen, okay, when a particulate antigen comes in the contact with the multivalent antibody, it will lead to the formation of a visible clump. Okay, why it forms the visible clump? Because there is a formation of the lattice, and lattice is of very large size. Okay, that's why it looks like a clump. That's why the agglutination reaction leads to the formation of the visible clumping. Okay, we have seen already these things. Now we have already studied that the lattice formation takes place in the two stages. First one is the sensitization and the second one is the actual lattice formation. Now if you remember what kind of the particulate antigens are involved in the agglutination, first one was the bacterial cell. Okay, then second one is the erythrocytes or the RBCs. Okay, the third one will be the inert carriers, like it may be the latex particles which are also of a greater size. Okay, and when this agglutination reaction antibodies which are going to form the agglutination are known as the agglutinins. Okay, you can see here they are known as the agglutinins. means जो antibodies agglutination करने वाली है, they are called as the agglutinins. and जो antigen, okay, antigen यहाँ पे कौन है फिर? RBC हो सकता है, it may be the bacterial cell or it may be the viral particle also. Okay, so that antigen is known as the agglutinogen. Okay, remember these 2 points. Agglutinin is what?
it is the antibody which is going to participate in the agglutination. Okay, it is known as the agglutinin. Okay, and that antigen which is going to get involved in the agglutination, because of whom the agglutination is taking place, is known as the agglutinogen. Okay, remember these two things, they are very important. Now we have already learned that antigen antibody reactions in the particularly agglutination involves the two step. Okay, first step was the sensitization. What is the meaning of sensitization? When the antigen and antibody comes in the contact, okay, very close contacts, and when one single antigenic determinants reacts with a single binding site, then it is known as the sensitization. It is not a clump formation. Okay, up till now they are only coming in the close proximity. Now the second step involves the actual lattice formation. How it takes place? Then when the multivalent antibodies are going to bind with the multiple antigenic determinants. Okay, मीन्स वॉज कि दैट एंटीबॉडी उसके पास दो हाथ है. ओके, इट हैज़ अ टू फैब रीजन्स. देन वो क्या करेगी, फिर एक फैब रीजन से एक एंटीजन को बाइंड करेगी, दूसरे फैब रीजन से दूसरे एंटीजन को बाइंड करेगी. सेम मैनर में सभी एंटीबॉडी the things we have studied in the offline lecture. Okay, now we need to learn that how this agglutination reaction is going to help us. हमें क्यों पढ़ना है या हमें क्या इसकी ज़रूरत है सीखने की? तो ये जो अग्लूटिनेशन रिएक्शन है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, देन दे लीड टू सम काइंड ऑफ अ रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शंस वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ दिस रिएक्शन आर गोइंग टू हेल्प अस in the diagnosis purposes in the day-to-day life. Okay, so the one important application or important, we can say, a type of test which is based on the agglutination is heme agglutination. Remember this thing, heme agglutination is the first type of the agglutination test which we use in the lab for the diagnosis. So इसके नाम में ही क्या है, हेम. ओके, हेम इज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर दी आरबीसीज और द इरिथ्रोसाइट्स. ओके, और ब्लड. सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आरबीसी की मदद से ये टेस्ट करने वाले हो. इसमें आप अग्लूटिनेशन करने वाले हो. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज दी हेम अग्लूटिनेशन. ओके, इसमें सबसे जो कॉमन हेम अग्लूटिनेशन फिनोमिनॉन विच यू हैव सीन और यू हैव परफॉर्म इन द लैब इज द ब्लड टेस्ट. We have performed the blood detection test, blood group detection test in the lab very often. Okay, in the 12th standard also, in the TYBSc, SYBSc, you always have performed this test. So I don't need to go inside the deep principle of it. So just we will revise it. तो इसमें क्या होता है, we take a slide. Okay, we take a slide, we add the 3 drops on it. 3 drops ऐड किए हमने. उसके बाद okay, I will show you picture of it. So we will take a slide, clean slide, we will add the 3 drops on it. Okay, then after that what we are going to do, हमें पता है आरबीसी पे क्या होता है, आरबीसी पे होती है एंटीजेंस. ओके, एंटीजेंस होते हैं, रिसेप्टार्स होते हैं. तो आरबीसी पे जो एंटीजेंस होते हैं, इट मे बी द ऑफ टाइप ए, इट मे बी ऑफ टाइप बी, इट मे इधर हैव बोथ द एंटीजन टाइप्स, एंटीजन ए आल्सो एंड एंटीजन बी आल्सो. ओके, इट मे इधर हैव नन ऑफ द एंटीजेंस, इट मे नॉट हैव आल्सो एंटीजन ए, एंटीजन बी. ओके, सो in these cases we are going to use this phenomenon of the RBCs of having the antigen on its surface. उसके ऊपर जो एंटीजन्स है वो कौन से एंटीजन है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट. ओके, हेम अग्लूटिनेशन टेस्ट. तो इसमें क्या किया जाता है कि हमने स्लाइड ली है, स्लाइड पे 3 ड्रॉप्स डाले हैं. अब हमें नहीं पता है कि उन आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है या है भी या नहीं. वी आर गोइंग टू डिटेक्ट इट. ओके, हमें अभी तक नहीं पता कुछ भी. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लेस द 3 ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड. ओके, अब किसका ब्लड लेना है, पेशेंट का ले सकते हैं या अपना ले सकते हैं फॉर द टेस्ट. ओके, सो हमने क्या किया, 3 ड्रॉप्स डाले. उसके बाद अभी हमें पता है सेल पे आरबीसीज या आरबीसीज पे वी कैन से आरबीसी इज अ काइंड ऑफ सेल. तो आरबीसी पे वी कैन से कोई एंटीजन है और हमें ये डिटेक्ट करना है कि उस पर कौन से टाइप का एंटीजन है. सो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करने वाले हैं, उसमें एंटीबॉडी डालने वाले हैं.
ओके। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे और कुछ रिएक्शन होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है। ओके, सो हमने क्या किया, ए में क्या किया, डाला एंटी ए एंटीबॉडी। ओके, सिमिलर वे बी में हमने एंटी बी एंटीबॉडी डाली, सी में हमने क्या डाला, एंटी डी डाला। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए में आपको क्या दिखेगा, विजिबल क्लम्पिंग, और अगर ए पॉजिटिव है तो आपको डी में भी क्या मिलेगा, विजिबल क्लम्पिंग, और बी में कुछ रिएक्शन होगा क्या, नहीं, बी में देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके, अब अगर उस पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा, वहाँ पे बी डॉट या बी जो हमने ब्लड ड्रॉप डाला था वहाँ पे आपको क्लम्पिंग मिलेगी, और अगर बी पॉजिटिव है तो बी और डी दोनों में भी आपको क्या मिलेगी, विजिबल क्लम्पिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आपको तीनों की तीनों ड्रॉप पे क्या मिलेगी, क्लम्पिंग मिलेगी। ओके, और अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो क्या मिलेगी आपको, बस ए पे क्लम्पिंग मिलेगी, बी पे क्लम्पिंग मिलेगी, डी पे कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। और अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव तो आपको बस डी में क्लम्पिंग मिलेगी, ए एंड बी में क्लम्पिंग नहीं ऑब्जर्व होगी। ओके, अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ओ निगेटिव, देन देयर विल बी नो क्लम्पिंग इन एनी ड्रॉप ऑफ द ब्लड। ओके, तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं अग्लूटिनेशन फिनोमेनॉन को फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुप। ये सबसे जो कॉमन हमने टेस्ट की हुई है, लैब में भी की है, हमने 12th स्टैंडर्ड में भी की है, या फ्यूचर में भी हम कर सकते हैं। सो दिस टेस्ट इज़ द वेरी कॉमन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुप। ओके, अब इसके अलावा एक और टेस्ट हम कर सकते हैं। ओके, हम इस टेस्ट के मदद से या इस फिनोमिनॉन के मदद से, अग्लूटिनेशन फिनोमिनॉन की मदद से एक और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ द हेम अग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि इस हेम अग्लूटिनेशन की मदद से हम वायरस डिटेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि लगती है टू फॉर्म अग्लूटिनेट। अब होता क्या है, जनरली जो एनवलप्ड वायरसेस होती है, लाइक इट मे बी द इन्फ्लुएंजा वायरस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस पर एनवलप है, उस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं पर्टिकुलरली जो एनवलप्ड वायरस, नॉट ऑल द वायरस, आई एम सेइंग एनवलप्ड वायरस। ओके, अगर कोई एनवलप्ड वायरस है तो उसके जो एनवलप होता है उस पर, आई वुड से अगर एनवलप्ड वायरस है तो उसके एनवलप पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जाके आरबीसी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आरबीसी से बाइंड हो जाते हैं क्योंकि आरबीसी के पास इसके लिए रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी से रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, एक क्लम्पिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट लीड्स टू द अग्लूटिनेशन। ओके, तो यही फिनोमिनॉन लैब में भी यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन इन द पर्टिकुलर सैंपल। अगर सैंपल में एंटीजन है या नहीं, इसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग द हेम अग्लूटिनेशन। ओके, अब यहाँ पे हमने आरबीसी को इन्वॉल्व किया है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द हेम अग्लूटिनेशन। ओके, अब यहाँ पे हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न। तो कौन सी वायरसेस में ये फिनोमिनॉन होता है, इन द एनवलप्ड वायरस। ओके, एनवलप्ड वायरस में होता है पर्टिकुलरली आरबीसी जो होती है उस पर सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सियालिक एसिड जनरली कोई भी सेल हो, एनवलप हो, उस पर जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो सियालिक एसिड हमारे भी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसके रिसेप्टर्स हमारे आरबीसी पे होते हैं, और इसी के साथ ये जो वायरस होता है, वायरस का एनवलप होता है, वो जाके बाइंड करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वायरस क्लम्पिंग फॉर्मेशन करता है। वी आर गोइंग टू सी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, कैन सी हियर कि दो तीन वायरस ने मिलके दो तीन आरबीसी को होल्ड किया है। ओके, दैट्स वाई इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द विजिबल क्लम्पिंग। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस थिंग ओनली टेक्स प्लेस इन द एनवलप्ड वायरसेस। ओके, पर्टिकुलरली तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइक्रोटाइटर प्लेट्स लेनी है। ओके, माइक्रोटाइटर प्लेट यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ऐसी होती है, एक छोटा सा प्लेट लाइक
वी कैन से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, ओके, प्लास्टिक की होती है या ग्लास की हो सकती है, और उसमें यहाँ पे वेल्स होती है, ठीक है, वेल्स होती है। अब आरबीसी को अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, आरबीसी को, तो आरबीसी क्या करती है, अगर आप नॉर्मली स्टडी करो तो आरबीसी क्या करती है, सॉरी, आरबीसी जब हम ऐसे ही सलाइन में डाल दें, ओके, सलाइन में डाल दें आरबीसी को, तो वो सेटल हो जाती है नीचे, ठीक है, सेटल हो जाती है और ये बटन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, यू कैन सी हियर। तो वो सेटल होने की वजह से उस टाइटर प्लेट में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सलाइन, तो वो ईजिली नीचे वी कैन से सेटल हो जाती है। सो इसकी वजह से एक बटन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ये नॉर्मली होता है आरबीसी में, ठीक है। तो अगर ये अग्लूटिनेट हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा फैल जाता है, ठीक है, ये पूरे प्लेट में फैल जाता है और थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बॉटम जो होती है, वेल कैसा होता है, थोड़ा सा कर्व होता है नीचे, तो उसके वॉल पे ऐसे स्प्रेड हो जाती है आरबीसी, अग्लूटिनेट हो जाती है। इसकी वजह से यू कैन सी यहाँ पे वो जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस आपको करनी होती है इस टेस्ट में कि वहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर है या वहाँ पे वो पूरा फैल चुका है, ठीक है, वो बटन लाइक स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, ओके, इन शॉर्ट। तो दिस थिंग हैपन्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने माइक्रोटाइटर प्लेट ली, ठीक है, या फिर आपने अब यहाँ पे बहुत सारे दिखाती हूँ, 4 वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेल्स है। अब मैंने क्या किया, पहले तो सलाइन लिया, ठीक है, सलाइन कौन सा, फॉस्फेट बफर सलाइन, ठीक है, सलाइन लिया, सलाइन क्यों, फिर ताकि डाइल्यूशंस हमें बनाने ही इसके, ठीक है, हमें वायरस के डाइल्यूशंस बनाने। तो हमने क्या किया, सलाइन लिया, सलाइन मैंने डाला सपोज 5 ml सलाइन, ठीक है, 5 ml सलाइन मैंने हर वी कैन से वेल में डाला, ठीक है। अब ये बड़ी वेल्स भी हो सकती है, तो मैंने 5 ml सलाइन डाला पूरे वेल्स में। देन आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने वायरस का सैंपल लिया, ठीक है, वायरस का सैंपल लिया। अब मैंने क्या किया, वायरस का सैंपल को डाइल्यूट मुझे करना है, ठीक है। मैंने पहली वेल में 0.5 ml डाला, ठीक है, उसमें से 5 ml लेके, सॉरी 0.5 ml लेके दूसरी वेल में, दूसरी में से लेके तीसरी वेल में, तीसरी से चौथी में डाला, ठीक है, 0.5 0.5 0.5, ठीक है। अब ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया लास्ट वेल का, ठीक है, कितना 0.5 ml डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने इन सब में क्या डाला, 0.5% ऑफ आरबीसी डाली, ठीक है, 0.5% ऑफ आरबीसी का सॉल्यूशन डाला अब इसमें, और वो इक्वल अमाउंट में डाला, 5 या फिर 4 वेल्स में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ आरबीसी डाला, ठीक है। अब मैंने उसको इंक्यूबेट होने दिया। इंक्यूबेट होने के बाद मुझे कुछ दिखा, ओके, इंक्यूबेट होने के बाद मुझे क्या दिखा कि, ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे, ओके, 4 वेल्स मैंने ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे जो है मुझे आरबीसी थोड़ी लाइक अग्लूटिनेशन दिखा, ठीक है, इन दोनों वेल्स में, और इन दोनों वेल्स में नहीं दिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये दोनों में मुझे अग्लूटिनेशन नहीं दिखा फर्स्ट 2 में, बट थर्ड में दिखा। तो थर्ड वाला जो है वो हाईएस्ट डाइल्यूशन है, इससे डाइल्यूशन इसका फोर्थ वाले से थर्ड वाले का डाइल्यूशन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आरबीसी क्या है, सॉरी नॉट आरबीसी, टेक्स प्लेस, जिसको बोला जाता है टाइटर, ठीक है, वायरस का टाइटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे 0.5% आरबीसी को लाइस होने के लिए कितना अमाउंट में मुझे वायरस लगा। वी कैन डिटेक्ट दैट यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। इससे हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल में आरबीसी प्रेजेंट है क्या नहीं। अब ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यू कैन सी हियर, अगर वायरस नहीं है उस सैंपल में तो ऐसे बटन लाइक स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, इंक्यूबेशन के बाद भी। लेकिन अगर उसमें वायरस प्रेजेंट है देन ये ऐसे फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, वो पूरा जो वेल है उसमें आपको रेड कलर दिखेगा, ठीक है। सो ऐसे में डिटेक्ट कर सकते कि वायरस प्रेजेंट है कि प्रेजेंट नहीं है इन द सैंपल, ठीक है, समझा आपको। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ नहीं करना है, बस माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी है। माइक्रोटाइटर प्लेट में मुझे पहले क्या डालना है, सलाइन डालना है, ठीक है, सलाइन मैंने डाला। सलाइन डालने के बाद मैंने इक्वल वॉल्यूम सलाइन डाला है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सलाइन डालने के बाद मैंने उसमें डाला द वायरस। वायरस कैसे डालना है, फिर पहले में 0.5 डाला, उसमें से 0.5 लेके दूसरे में 0.5, दूसरे में से तीसरे में, और तीसरे में से चौथे में 0.5, ठीक है। डाइल्यूट करना है मुझे, सीरियली डाइल्यूट करना है। किसको करना है,
वायरस को करना है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। देन आफ्टर दैट मैंने क्या डाला उसमें 0.5% ऑफ आरबीसी हर ट्यूब में या हर वेल में मैंने डाली, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डाइल्यूशन वगैरह नहीं किया, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ आरबीसी डाली, इंक्यूबेट होने दिया। जिस भी प्लेट में मुझे अग्लूटिनेशन दिखा वो मेरा टाइटर हुआ, ठीक है। टाइटर मतलब क्या, द हाईएस्ट डाइल्यूशन एट विच द अग्लूटिनेशन ऑकर्स, ठीक है। मुझे टाइटर मिला, या तो फिर मैं इजीली डिटेक्ट कर सकती हूँ, बस मुझे ट्यूब में या वेल में डालनी है आरबीसी, सैंपल डालना है, और अगर अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हुआ देन मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि उस सैंपल में हेम अग्लूटिनेशन। नाउ यू कैन सी हियर इंटरप्रिटेशन, अगर ये हेम अग्लूटिनेशन नहीं हुआ है देन द आरबीसीज आर गोइंग टू सेटल डाउन एट द सेंटर ऑफ द वेल, और इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होगा। और अगर हेम अग्लूटिनेशन हुआ है देन द आरबीसीज आर गोइंग टू कोट द होल वॉल ऑफ द वेल, दैट इज वाई इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना ही आपको इंटरप्रिटेट करना है। तो इट वॉज बीन ऑल्सो, ये जो हेम अग्लूटिनेशन टेस्ट है ये डिटेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, ये इन्वेंट किया था मिस्टर जॉर्ज हर्स्ट, ओके। ये अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट है। देन अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो दे हैव द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक दी ब्लड ग्रुप डिटेक्शन एज वेल एज दी एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन है। ब्लड ग्रुप आपको पता है कैसे डिटेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन का भी आप हेम अग्लूटिनेशन में लिख सकते हो, ओके। यू कैन राइट द हेम अग्लूटिनेशन कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुप एंड यू कैन राइट द होल प्रोसीजर इन इट, ओके। और हेम अग्लूटिनेशन आप वायरल डिटेक्शन में कैसे कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द वायरस, एंड आप ये भी फिनोमिनॉन लिख सकते हो, ओके। दिस टू आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द हेम अग्लूटिनेशन। अब ये हुआ हेम अग्लूटिनेशन, इसमें हम अग्लूटिनेशन करते हैं, आरबीसी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अब ये हुआ हेम अग्लूटिनेशन, ओके। इसके अलावा भी एक और प्रोसीजर है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब क्या, अग्लूटिनेशन हुआ तो निगेटिव टेस्ट, इसको बोला जाता है दी अग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पॉइंट प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, ओके। एंड